تو یہ موقع آپ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، میری طرف سے ہر کسی کو اجازت ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارا ساتھ طاقت مل جائے، ہمارا ساتھ ایسا طاقت مل جائے کہ دنیا کا ہر کام یہاں پر بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم خود کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک زبردست قسم کا نقش مبارک اور ایک صورت کا عمل بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے، ہر حاجت پورا کروانا ہے، ہر مشکل سے نکلنا ہے، طلاق کا مسئلہ رکوانا ہے، محبت کا شادی کرنا ہے، یا آپ کاروبار میں کامیابی ترقی چاہتے ہو، یا آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، آپ کہتے ہیں کہ چت پاڑ کے پیسے آ جائیں، یا آپ کو کہیں پر کامیابی نہیں مل رہی اور آپ کہتے ہو کہ مجھے کامیابی مل جائے، میرے بھائیو جیسے آپ کی سوچ ہوگی، جس سوچ پر آپ اس وظیفے کو یا اس نقش کو لکھو گے، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی معاملہ اللہ جل شانہ کرے گا۔ اگر نہ کیا تو یہ آپ مجھے پھر بتا دینا کہ آپ نے مکمل طور پر جھوٹ بولا تھا۔ بات یہ میرے بھائی کہ اپنی ذات کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید کا ایک سورت مبارکہ ہے سورہ جن، ان کے بارے میں، اور اس کا نقش ہے سورہ جن کا، اس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ فائدہ تب آپ بھائیوں اور بہنوں کو ہوگا جو آپ لوگوں کو مکمل سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کس چیز کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہر جگہ اور ہر قدم پر آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور کامیابی بھی ملے گی۔ اچھا، سورہ جن، اگر کسی شخص کو عصیب ہو گیا، اگر کسی کے اوپر جنات ہے، کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کا سایہ ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے۔ اچھا، ہو گیا ہو تو سورہ جن پڑھ کر 7 یوم تک دم کرے تو عصیب بھاگ جائے گا، اور جن وہ پری کے تسخیرات کے لیے 700 بار پڑھے، جن قابو آ جاوے گا، یا 1007 نقش 1007 نقش سورہ جن کے لکھیں تو جن و پری مسخر ہو جائے گی۔ اگر قیدی سورہ جن کو پڑھے تو بہت جلد رہا پائے گا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی فائدے ہیں اس میں۔ اب ایک تو سوال کا یہ بھی جواب آ گیا کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے نا کمنٹ کرتے ہیں اور ہر طرح کے سوال کرتے ہیں، تو اس میں یہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں کہ ہم جن کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں، پری کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں، پری ہمیں دے دو، پری ہمارے ساتھ شیئر کر لو، یا پری ہمارا تابع کر لو۔ تو آج کا اس عمل سے آپ کو جن بھی ملے گا اور پری بھی مل جائے گی، اور جو چیز مطلب اگر آپ جائز کام کے لیے کروانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کتاب کا مصنف میں خود ہوں، یہ کتاب میں نے لکھا ہوا ہے، مکمل کتاب انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک 200 سال سے اولڈ کتاب ہے، پرانا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت سارا میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اور بہت سارا باقی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، ایک واقعہ آپ سن لیں میری بھائیوں میری بہنوں۔ ایک کل بہن نے رابطہ کیا تھا، میرے خیال میں باہر کی کنٹری سے تھی، پتہ نہیں کون سی کنٹری تھی، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں قطر سے تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہر روز میں تہجد پڑھتی تھی اور یہ دعا رب سے کرتی تھی کہ شیر وظیفہ سے میری بات ہو جائے۔ تو کل میں نے ان سے بات کی اور ان کا نمبر میں نے پن کیا، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے مزید بات چیت ہوگی۔ بات یہ میرے بھائیوں کہ بہت زیادہ لوگ رابطے کرتے ہیں ہزاروں کے تعداد سے، تو ہر کسی کو رپلائی دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے کنٹیکٹ کیا اور فوراً آپ کو رپلائی مل جائے، آج آپ لوگوں نے رابطہ کیا اور آج ہی آپ کو جو ہے نا جواب مل جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ تھوڑا بہت جو ہے نا ویٹ کریں، انشاءاللہ رابطہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہر حال میں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو
थोड़ी बहुत जो है ना आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है बस। इंशाअल्लाह ताला मैं अकेला हूँ और आप हज़ारों लोग हैं, तो एक आदमी हज़ार को काबू करना इतना आसान नहीं है, हज़ारों को जवाब देना। अच्छा, तो बहन ने ताजुद में दुआ मांगी और फ़ौरन मेरा उससे राबिता हुआ, तो ये ताजुद की बरकत थी मेरे भाइयों। अच्छा, अब हरफन व हरफन समझाने जा रहा हूँ, आप लोग सुन लें। अगर किसी शख्स के ऊपर किसी भी किस्म का जिन हो, देव हो या कोई भी ऐसे खतरनाक उनके ऊपर साया हो कि वो हटने का नाम नहीं ले रहा, तो आप लोगों ने 7 रोज तक रोजाना सूरह जिन एक मरतबा पानी पर दम करके उनको पिलाना है। 29वां पारा में ये है, जैसे आधा पारा कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर जो है ना कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, ये यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने 7 रोज तक ये अमल करना है, फिर आप देखें किस तरह वो भागते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग कहते हो कि हमारा साथ ताकत मिल जाए, हमारा साथ ऐसा ताकत मिल जाए कि दुनिया का हर काम यहाँ पर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से अगर किसी का कोई मसला है तो हम खुद करें, मतलब ये है कि अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तो ये मौका आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। मेरी तरफ से हर किसी को इजाज़त है, लेकिन इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये चिल्ला आप कर लें। अगर नाजायज़ के लिए करोगे तो किसी भी किस्म का मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। और दूसरी शर्त यह है कि वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखनी होगी और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें। अच्छा, अब इसका नकश भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस नकश से आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मेरे भाई, अगर ये नकश आपके पास होगी तो एक बात तो ये है कि किसी भी किस्म का ख़तरनाक जिन होगा तो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा और नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये आप लोगों के साथ जो है ना ऐसी ताकत है, यानी छुरी है, तलवार है, कोई भी आएगा तो काटेगा। आपका दुश्मन भी सामने आएगा ना तो वो कट जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये नकश स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने बावजू होना है और 5 मरतबा अव्वल और 5 मरतबा आखिर दरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़नी है, लिखनी नहीं है। और 7 मरतबा सूरतुल फातिहा अव्वल और आखिर पढ़नी है, लिखनी नहीं है। लिखना सिर्फ और सिर्फ इस नकश को है जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस नकश को लिखकर आप लोगों ने गले में लटकाना है या बाजू पर बांधना है, दाएं बाएं कोई भी बाजू हो, या पर्स में रख लेना है या घर में अपने घर कमरे में लटकाना है। यानी आपके पास अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, अपने पास नहीं रख सकते तो अपने कमरे में इसको या अपने घर में इसको लटकाएं। इंशाअल्लाह ताला किसी को नजर आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, लेकिन हर तरह के असीब, हर तरह के जिन और हर तरह के साये से और हर तरह के जो भी शैतानी चीज़ है उससे अल्लाह जल्ल शान आप लोगों को महफूज रखेगा, बल्कि तमाम घर वालों को महफूज रखेगा। और जिसने अपने पास इस नकश को लिखना है तो अपना नाम, अपने वालिदे का नाम भी साथ लिख कर अपने पास रख लेना है। और जिस मकसद से लिखोगे, जिस गरज से लिखोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक वाक़या आप यहाँ पर सुन लें। एक मेरी बहन थी, उसके साथ 11 साल से ऐसे जिन्नात थे कि जैसे उनके ऊपर आते थे तो दो काम उनके साथ होते थे। एक तो पेट में इस तरह दर्द और इस तरह जो है ना चुरी जिस तरह लोग मारते हैं पेट में, इसी तरह उनके पेट में दर्द होता था और इतनी चीखें कि पूरा मोहल्ला जो है ना खबरदार हो जाता था। और दूसरी बात यह कि सर के ऊपर चक्कर आना, ये 2 चीज़ें उनके साथ थी। बहन जी को मैंने कहा कि इस नकश को लिख कर अपने पास रख लो, और पास रखने के बाद वो जिस दिन से रखा है उस दिन से लेकर आज तक वो करीब भी नहीं आए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद के अंदर दुनिया के तमाम मसाइलों का हल रखा हुआ है, लेकिन किसी को नजर आता है और किसी को नजर नहीं आता। अब मेरे भाइयों, आपको एक
सादा और सीधा सिंपल बात बताता हूँ। एक आदमी है, उसने तालीम किया हुआ है दुनिया का, तो जहाँ से वो जाएगा और कोई भी बोर्ड लगा हुआ होगा, चाहे इंग्लिश का होगा, चाहे वो उर्दू का होगा, किसी भी ज़बान का होगा, जिस ज़बान से उसने तालीम हासिल की, अगर किसी ने अंग्रेज़ी में तालीम हासिल किए हैं, कोई भी अंग्रेज़ी का बोर्ड आएगा तो वो सेकंडों के अंदर पढ़ पाएगा और उनको ये भी समझ आएगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं। और एक आदमी है, वो स्कूल गए हुए नहीं है, उनके पास कोई तालीम ही नहीं है, उनके सामने अगर बोर्ड आ जाए तो वो पढ़ पाएगा। तो इसके पीछे हमारे सालों की मेहनत है। हमें हर चीज इस तरह नजर आते हैं जिस तरह आईने में कोई आदमी की देखता है। सिर्फ अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम जैसे आप बताते हैं, हिसाब करने के बाद आईने की तरह आप लोग हमें दिखते हैं। कोई भी मसला हो, अल्लाह के फजल और करम से वो नजर आता है और उसको अल्लाह के फजल और करम से ऐसे हल करते हैं जैसे ये मसला तय ही नहीं। तो मेरे भाइयों, बहुत भाई ये बात मैंने क्यों की है, इसलिए की है कि बहुत लोग कहते हैं कुरान मजीद है, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है। आप होते कौन है इजाजत देने वाले? तो मैं उनको सादा और सीधा सिंपल जवाब देता हूं, मैं आपका बाप होता हूं जवाब देने वाला, मैं आपका बाप होता हूं इजाजत देने वाला। लेकिन बाप दो तरह के होते हैं, एक जिससे पैदा हो और एक जो रूहानी हो। तो हमारा महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों का सरदार मुबारक है, वो भी हमारे बाप है रूहानी। तो उनको मैं ये जवाब देता हूँ, मैं आपका बाप हूँ। ये नहीं कि रूहानी हो कोई भी हो, उनको तो गुस्सा आएगा कि इसने मुझे क्या जवाब दिए हैं, लेकिन मेरा जवाब ये है कि रूहानी बाप हूँ मैं आपका। चाहे मुझसे आप बड़े हो छोटे हो, तालीम जिससे आपने हासिल की हो ना, तो वो आपका बाप है। तो मेरे भाइयों, मैंने सूरह जिन का आप लोगों को अमल भी बताया और नक्श भी दे दिया, दोनों को आपको इजाज़त है। और अगर आप आमिल बनना चाहते हो, अपने काबू में लाने चाहते हो परी और जिन को, तो फिर आप लोगों को क्या करना है? फिर अगर आप उनको मुसख्खर करना चाहते हैं, ताबे करना चाहते हैं, तो 1007 नक्श सूरह जिन के लिख के, ये नक्श जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को मैंने दिखाया ना, तो इनको आप लोगों ने कितना लिखना है? 1007 आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? तो जिन और परी मुसख्खर हो जाएगी। अगर कैदी सूरह जिन पढ़े तो वो जल्द रिहाई पाएगा। अच्छा, 1007 मरतबा इस नक्श को आपने लिखा और अपने पास आपने एक डायरी लेके ना उनको आपने भरना है। दूसरा, जितने भी आ जाए तो उसको अपने पास आप लोग ने रखना है, न फेंकना है, न उसके साथ किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करनी है। संदूक हो, अलमारी हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर रख कर अपने पास रखें। इसमें दो तरह के जो है ना आप लोगों के फ़ायदे हैं। एक ये है कि दुनिया का कोई भी जिन भूत वगैरह आएगा ना, तो आपको नज़र आएगा, आप उस पर काबू पा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का कोई भी ख़तरनाक से ख़तरनाक जिन हो, परी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोई भी आएगा ना तो फौरन आपका ताबी होगा। अब हज़ारों भी ताबी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। जितना आपके पास ताकत होता जाएगा उतना ही आप जो है ना ताकतवर हो, जितना ज़्यादा आएंगे उतना आप ताकतवर होंगे। लेकिन फिर एक बात आप ज़रूर याद रख लीजिएगा कि इजाज़त सिर्फ उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर कोई नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो बाल दुनिया और आखिरत में उनके ऊपर होगा। हम उससे बरी ज़िम्मा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।